Bits and pieces. It's a relevant costing question. बेसिकली ये ऑपरेट और शट डाउन डिसीजंस का पार्ट है, जिसमें आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आपको कोई डिवीजन ऑफ अ बिजनेस चलाना है या बंद करना है, या किसी पर्टिकुलर डे पे चलाना है या नहीं चलाना। तो उसको हम कहते हैं ऑपरेट और शट डाउन डिसीजन। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का ही पार्ट है, बट एक स्पेसिफिक किस्म का डिसीजन है जिसको हम कहते हैं ऑपरेट और शट डाउन। Bits and Pieces operates a retail store selling spares and accessories for the car market. The store has previously only opened for 6 days per week for the 50 weeks in the year, but BNP is now considering also opening on Sundays. Okay, that the decision is now to open the store on Sunday or not. The sales growth of the business on Monday to through Saturday averages $10,000 per day with an average gross profit of 70% earned. ये मंडे टू सैटरडे जो है उसकी सेल्स $10,000 पर डे है, और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट्स 70%. BNP expects that the gross profit percentage earned on Sundays will be 20 percentage points lower than the average earned on the other days. यानी 20 points कम होगा, यानी अगर ये 70% है तो उसमें से 20 माइनस करें तो 50% रह जाएगा. सो संडे वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 50% होगा. And this is because they plan to offer substantial discounts and promotions on Sundays to attract customers. Given the price reduction, Sunday sales revenue are expected to be 60% more than the average daily sales revenue of the other days. 10,000, 60% extra. So these Sunday sales estimate are for new customers only, with no allowance being made for those customers that may transfer from other days. So assumption ये है कि जो संडे को आपकी सेल्स होंगी ये टोटली न्यू कस्टमर्स होंगे, यानी कोई भी बंदा जो मंडे टू सैटरडे आपसे चीज़ें खरीदता था वो अभी भी खरीदेगा, और वो उनमें से कोई भी संडे पे स्विच नहीं करेगा डिस्काउंट वगैरह की वजह से, जो कि इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन है. लोगों को जब डिस्काउंट नज़र आएगा तो मे बी दे स्विच फ्रॉम वीक डेज टू द संडे. लेकिन उनकी अजम्पशन ये है कि ये बिल्कुल न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी आपकी जो डेली जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी. BNP buys all its goods from one supplier. Okay. This supplier gives 5% discount on all purchases if annual spend exceeds $1 million. यानी अगर उसकी टोटल परचेजिंग साल की 1 मिलियन से ज्यादा हो जाती है तो तमाम परचेजेस के ऊपर उसको 5% डिस्काउंट मिल जाता है. It has been agreed to pay a time and a half to sales assistants that work on Sundays. The normal hourly rate is 20 per hour. In total, 5 sales assistants will be needed for 6 hours that the store will be open on a Sunday. They will also be able to take a half day off 4 hours during the week. Staffing levels will be allowed to reduce slightly during the week to avoid extra cost being incurred. So सेल्स असिस्टेंट को टाइम एंड हाफ पे होगा संडेज को काम करने के लिए. उनका नॉर्मल रेट है 20 पर आवर. इन टोटल 5 सेल्स असिस्टेंट विल बी नीडेड. 5 सेल्स असिस्टेंट्स होंगे जो कि 6 घंटे हर संडे को काम करेंगे, और उसके बदले उनको आम दिनों में हाफ डे ऑफ भी मिलेगा. और वो कह रहे हैं कि उसको आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को इस तरह एडजस्ट करोगे कि वो जो उनका हाफ होगा उसकी जगह पर उनका ऑफ होगा तो उनकी जगह पे कोई और काम कर लेगा बगैर किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के. Staff will have to be supervised by a manager currently employed by the company and paid an annual salary of 80,000. If the manager works on Sundays, they will take the equivalent time off during the week when the assistant manager is available to cover for them at no extra cost to BNP. The manager will also be paid a bonus of 1% of the extra sales generated on Sunday project. तो जो भी संडे को सेल्स होंगी उसका 1% भी मैनेजर को मिलेगा, बाकी तो फिक्स सैलरी है. The store will have to be lit at a cost of 30 per hour and heated at a cost of 45 per hour. The heating will come on 2 hours before the store opens in 25 winter weeks to make sure it is warm enough for customers to come in at opening time. सर्दियों में उसको उसकी हीटिंग होगी 45 पर आवर के हिसाब से, और शॉप के दो घंटे पहले शॉप के खुलने से 2 घंटे पहले जो है वो उसकी हीटिंग हो रही होगी. लेकिन जाहिर है सिर्फ सर्दियों में, तो 25 वीक जो विंटर के उनके हैं उसमें.
and the store is not heated in the other weeks, obviously. The rent of the store amounts to 420,000 per annum. That's a fixed cost. वो तो वैसे भी आएगी चाहे संडे को आप ओपन करें ना करें. So now we have to decide whether opening on Sundays will benefit the company financially or not. So सबसे पहले तो हम जाते हैं incremental रेवेन्यू के ऊपर कि भाई जब आप संडे को ओपन करोगे तो आपको एडिशनल रेवेन्यू कितना मिलेगा. So let's talk about the additional revenue. So as per the question, the normal sales per day are 10,000, whereas on Sundays it will be 60% more. So into 160%, तो ये 16,000 हो जाएंगी हर संडे की सेल्स. और 50 संडेज ऑब्वियसली होंगे पूरे साल में. देयर आर 50 वीक्स, सो 50 संडेज हो जाएंगी. सो $800,000 का टोटल रेवेन्यू होगा. 160,000 पर संडे एंड 50 वीक्स होंगे तो हर वीक में एक संडे होता है, तो 50 वीक्स में 50 संडेज होंगे पूरे साल में. 800,000 ये हो गया एडिशनल रेवेन्यू. उसके बाद हम इसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं. अच्छा, कॉस्ट में एक तो परचेज कॉस्ट है, वो अभी हम नहीं डिस्कस करते, वो हम देखते हैं इन वाइल. उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट दी हुई है उसमें एक तो मैनेजर का बोनस है, मैनेजर बोनस विच विल बी 1% ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑन संडेज. सो $8 लाख की सेल्स होंगी तो 8% $8,000 हो जाएगा. उसके बाद जो आपने सेल्स स्टाफ को पेमेंट करनी थी, ये रहा. It has been agreed to pay time and half to sales assistants that work on Sundays. The normal hourly rate is 20 per hour. 5 sales assistants and 6 hours per Sunday काम करेंगे. Sales assistants, they will be paid 20 का 1.5 times time and half into 6, एक संडे की पेमेंट into 50. अब ये जो आया है 20 into 1.5, ये पर आवर रेट आ गया विद प्रीमियम. ये आगे 6 से मल्टीप्लाई किया तो आवर्स की पेमेंट आ गई, यानी एक संडे की पेमेंट आ गई. और 50 संडे काम करेंगे तो ये आ जाएगी. लेकिन ये एक बंदे की है. इस तरह के कितने असिस्टेंट्स काम करेंगे? 5 सेल असिस्टेंट्स काम करेंगे. सो 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. सो 20 इंटू 1.5 30 पर आवर हो गया, एक घंटे का रेट. एक संडे में 6 घंटे काम करेंगे, 50 संडेज काम करेंगे और ये 5 लोग काम करेंगे. सो 45,000 विल बी पेड टू सेल्स असिस्टेंट्स. ओके, देन जो हीटिंग एंड लाइटिंग है, हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट. तो हीटिंग कॉस्ट पहले लिख लेते हैं. हीटिंग उसने कहा था 25 वीक्स होगी. और संडे को हम स्टोर जो खोल रहे हैं वो कितने घंटे के लिए खोल रहे थे? फॉर हाउ मेनी आवर्स हम खोल रहे थे? 6 घंटे के लिए. ओके, 6 आवर्स ना. तो 6 आवर्स संडे वो खुलेगा, लेकिन हीटिंग के लिए 2 घंटे पहले हीटिंग करनी पड़ेगी. तो 6 + 2 8 आवर्स. 8 आवर्स की वो करनी पड़ेगी. तो एक संडे 8 घंटे और 25 संडेज मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आवर्स आ गए. और जो हीटिंग की कॉस्ट है दैट वाज 45 पर आवर. सो 9,000 हीटिंग की कॉस्ट आएगी. उसके बाद लाइटिंग ऑब्वियसली आपको पूरे 50 वीक्स करनी पड़ेगी. बाकी ज़ाहिर है सर्दियों गर्मियों का लाइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. और ऑब्वियसली इसमें 6 घंटे ही आप लाइट्स ऑन करोगे, 2 घंटे पहले लाइट ऑन करने की कोई तुक नहीं बनती. सो और इसका रेट है $30 पर आवर. तो लाइटिंग करने का 30 पर आवर है. सो ये भी 9,000 हो गया. अब आ जाते हैं परचेज कॉस्ट के ऊपर. सो परचेज कॉस्ट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट कितनी है और संडे ओपनिंग के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी. एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट. एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप अगर देखें क्योंकि ये एक रिटेल बिजनेस है तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही उसकी परचेज कॉस्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, रिटेल बिजनेस है, रिटेल स्टोर है, तो जो चीज़ खरीदता है वही बेचता है. तो द कॉस्ट ऑफ सेल विल बी द परचेजेस. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है आम दिनों में वो 70% है, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 30% होगा, तो वही परचेजेस कॉस्ट होगी. सो एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट उसकी सेल्स हैं उसकी 10,000 नॉर्मल डेज में, एक दिन की. ठीक. और इसमें से 30% इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड.
सो एक दिन की जो परचेजेस हैं आप यूं समझिए वो $3000 है। अब ये एक दिन की है। अच्छा, उसके बाद हफ्ते में 6 दिन ये ओपन होता है और महीने में, सॉरी, साल में 50 वीक्स। सो दिस इज पर डे परचेजेस, ये 6 दिन की नहीं, एक हफ्ते की, और 50 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे साल की परचेजेस आ गई, एंड इट इज 900,000। अच्छा, अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिस्काउंट तब मिलेगा जब आपकी परचेजिंग 1 मिलियन से ऊपर होगी, तब जाके 5% मिलेगा, और इस वक्त जो आपकी परचेजिंग है पूरे साल की वो 900,000 है। दोबारा से देख लें कैसे आया। डेली की सेल्स है 10,000, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 70%, इसका मतलब बाकी परचेजिंग कॉस्ट है, यानी आपने परचेज करके बेचा तो 30% परचेजिंग कॉस्ट हो गई 3,000। ये एक दिन की है। हफ्ते में 6 दिन आप ओपन करते हो, मंडे टू सैटरडे, तो एक पूरे हफ्ते की कॉस्ट आ गई, और इस तरह के 50 वीक्स आप ऑपरेट करते हो, सो 900,000 आ गई। अब रिवाइज परचेज कॉस्ट, अगर आप संडे को ओपन करते हो, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपकी ये वाली परचेज कॉस्ट तो होगी होगी, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन साथ में आप संडे की भी परचेजिंग करोगे, संडे की भी परचेजिंग होगी, और संडे वाली में 50% मार्जिन है। सो 50% मार्जिन, 50% कॉस्ट। तो संडे की एक दिन की सेल 16,000 थी, हमने कैलकुलेट की थी, उसका 50% विल बी द परचेज कॉस्ट, 50% ग्रॉस प्रॉफिट, 50% परचेज कॉस्ट, और एक संडे की आ गई, अब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 संडेज की आ जाएगी। सो ये 13 लाख हो जाती हैं, यानी एग्जिस्टिंग और संडे मिलाकर 13 लाख की परचेजिंग हो जाएगी, जो कि 1 मिलियन से ज्यादा है, तो उसका मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा फिर। तो फिर 13 लाख नहीं होगा, एक्चुअली द सप्लायर विल बी चार्जिंग 95% ऑफ दिस, वो 5% आपको डिस्काउंट भी दे देगा अगर आप संडे ओपन करने जा रहे हो तो, क्योंकि संडे ओपन करने के बाद आपकी टोटल परचेजिंग जो है वो 13 लाख बनती है, 1.3 मिलियन बनती है, विच इज मोर देन 1 मिलियन। तो 5% ऑफ हो जाएगा, 95%, 1235000। सो टोटल परचेज कॉस्ट आपकी संडे ओपनिंग के बाद है 12350, जबकि एग्जिस्टिंग है 9 लाख। तो व्हाट्स द एडिशनल परचेज कॉस्ट? अब ये एडिशनल परचेज कॉस्ट बेसिकली आपको संडे ओपन करने की वजह से देनी पड़ रही है, 335,000। सो 1235000 पूरे संडे की परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, ये पूरे साल की है, विद अजम्पशन कि हम संडे को ओपन कर रहे हैं, और ये विदाउट संडे है। तो विदाउट संडे एंड विद संडे का जो डिफरेंस है, बेसिकली वो संडे की वजह से आपकी कॉस्ट का इंक्रीज आ रहा है। सो द परचेज कॉस्ट विल बी 335,000। सो अगर अब यही टोटल कॉस्ट हम ऐड करें, अच्छा बाकी सारी कॉस्ट इरेलेवेंट थी इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया, रेंट वगैरह वो तो संडे को ओपन करें ना करें, शॉप का रेंट तो आपको देना ही है। सो सबको सम करते हैं, 406,000 टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो अगर आप संडे को ओपन करते हो तो इट विल कॉस्ट यू 406,000, और रेवेन्यू मिलेगा 800,000। सो द नेट बेनिफिट on net benefit of opening on Sundays will be $394,000. So if we have to give a recommendation, to recommendation on financial ground, since Sunday opening is generating net income of 394,000, therefore financially it's advisable. So this is the decision, एंड ये बेसिकली ऑपरेट और शट डाउन से कनेक्टेड डिसीजन था, जिसमें हमें ये फैसला करना था कि हम संडे को ऑपरेट करें या ना करें।